So we are discussing chapter number 6, My Childhood. So simply up to here we have discussed, यहाँ तक हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, that this is an autobiography of APJ Abdul Kalam. And what is the name of his autobiography? Wings of Fire. So here he was telling us about his childhood. अपने बचपन के बारे में यहाँ पर हमें बता रहे हैं. तो कल जो क्लास था वो था दैट ही वाज डिस्कसिंग अबाउट हिज एजुकेशन, स्कूलिंग. ये बंद करिए माइक, किसका आवाज़ कर रहा है इतना. तो उसने बताया था दैट ही वाज स्टडीइंग इन अ प्राइमरी स्कूल ऑफ द विलेज. गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे. एंड ही हैज 3 फ्रेंड्स. हु वाज दैट? Arvindan and Shiv Prakash. What did Ramanand Shastri become later? Priest. Yes, he became priest. Arvindan, transporter. Shiv Prakashan, catering contractor in Southern Railways. And yeah, after that we have discussed that where he said that when he was in class 5th, a new teacher came. At that time, APJ Abdul Kalam used to sit on the front seat along with Ramanand Shastri. At that time, I used to wear a cap that identified me as a Muslim. मैं कैप लगाता जो मुझे मुस्लिम के रूप में आइडेंटिफाई करती है. While Ramanand Shastri used to wear a sacred thread, means वो जनेऊ पहनते थे. And the teacher couldn't digest it. He could not stomach it. That a Muslim boy would sit with a Brahmin boy. So as a social ranking, he asked me to sit on the last seat. उससे कहा कि आप last bench पर बैठिए. So while I was going there, Ramanand Shastri was crying, weeping, वो रो रहे थे. And when I saw him crying, और वो जो impression था, it left me lasting impression on my heart. तो वो जो impression था, वो lasting impression था, कभी ना खत्म होने वाला impression था. तो यहाँ तक हम लोग कर चुके थे, है ना. आज हम लोगों के यहाँ से पकड़ना आफ्टर स्कूल फ्रॉम पैराग्राफ नंबर 7. ओके. आफ्टर स्कूल we went home and told our respective parents about the incident. After school means when the school got over. जब स्कूल ऑफ हो गया, we all came back to our home. हम सब अपने घर आए. जैसे आपको कोई टीचर नेसेसरली मार दिया, कुछ कर दे, तो घर जाके सबसे पहले वही बताते हैं. टीचर ने 2 मारे होंगे तो और जोड़ के बता देंगे बहुत मारा आज तो तुरंत बताए, अच्छा या बुरा हो. अच्छा होगा वो भी बता देंगे कुछ. सो यही हुआ व्हेन बोथ ऑफ दे केम टू द स्कूल होम. जब वो अपने घर पर पहुंचे, सो दे टोल्ड अबाउट द इंसिडेंट ऑफ द स्कूल टू देयर पेरेंट. एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने घर बताया और रामानंद शास्त्री ने अपने घर पर बताया. लक्ष्मण शास्त्री समन्ड द टीचर. So the father of Ramanand Shastri, Lakshman Shastri, he summoned means called the teacher immediately. उन्होंने तुरंत उस टीचर को बुलाया और बुला के उस टीचर से क्या कहा. And in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. And he asked to the teacher, उन्होंने टीचर से कहा that these are the innocent children. ये बच्चे innocent हैं. Please don't spread the poison of social inequality, सामाजिक असमानता का, और कम्युनल इंटॉलरेंस, और धार्मिक असहिष्णुता, क्या बोलते हैं हिंदी में, असहिष्णुता, उसका भी पॉइजन इनके बीच में मत फैलाइए. He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island. And now he asked the teacher that you have only 2 options now. आपके पास 2 ऑप्शन है. Either apologize to the children, say sorry to the children. या तो जो आपने किया बच्चों के साथ गलत किया, या तो आप बच्चों से सॉरी बोलिए, और quit the school and island.
या फिर इस स्कूल इस आइलैंड को छोड़ के अभी के अभी चले जाइए। Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshman Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher. Because not only the teacher say sorry to us, not only he was reformed, केवल वो टीचर सुधर ही नहीं गए, बल्कि जो लक्ष्मण शास्त्री का था एक किस प्रकार का सेंस डेवलप कर दिया कि वो जो यंग टीचर था वो बिल्कुल सही हो गए। उन्होंने उसके बाद फिर कभी किस प्रकार का इंसिडेंट नहीं किया। On the whole, the small society of Rameswaram was very rigid in terms of segregation of different social groups. So if we talk about Rameswaram, कहते हैं अगर रामेश्वरम की बात करें, so the small society of Rameswaram, बेटा किस जगह में जाति पात ऊंच नीच किस जगह में ज़्यादा होती, बड़े शहर में या छोटे शहर में? छोटी जगह में ज़्यादा होती। छोटी जगह क्या सब एक दूसरे हो रही है? यहाँ से मोस्टली सब एक दूसरे को जानते हैं कौन क्या है, तो ज़्यादा मतलब रखते हैं। जैसे दिल्ली जैसी जगह चले जाओ, कोई पता ही नहीं होता बगल वाली फ्लैट में कौन रह रहा, ये पता नहीं होता, बाकी तो छोड़ दो, है ना। तो उन्होंने क्या कि जो छोटा सा टाउन था रामेश्वरम, इट इज़ वेरी रिजिड। ये कैसा था? रिजिड। रिजिड मतलब हाँ फर्म, है ना, बहुत ही फर्म था। बहुत किसमें? सेपरेशन ऑफ डिफरेंट सोशल, सेपरेशन ऑफ सेपरेशन, कि समाज को अलग अलग सोशल ग्रुप्स में बांटा जाए, ये हिंदू, ये मुस्लिम, और हिंदुओं में भी ये ब्राह्मण। तो इस प्रकार की सोशल कैटेगरीज में जो रामेश्वरम था वहाँ के लोग बटे हुए थे। हाउएवर माय साइंस टीचर शिव सुब्रमण्य अय्यर, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण विद अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, वाज समथिंग ऑफ अ रिबेल। तो उसने कहा माय साइंस टीचर नेम वाज शिव सुब्रमण्य अय्यर। जो मेरे साइंस टीचर थे उनका नाम था शिव सुब्रमण्य अय्यर, एंड ही हैड अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ। उनकी वाइफ कैसी थी? बहुत ही कंजर्वेटिव, बहुत ही पुरानी विचारधाराओं की, बहुत ही ये जात पात ऊंच नीच इन सबको बहुत मानती थी। बट माय टीचर वाज रिबेल बाय नेचर। रिबेल किसको बोलते हैं? रिबेल का मतलब अपोजिशन, विद्रोही, विद्रोही स्वभाव के थे। वो इन सारी चीज़ों को नहीं मानते थे। He did his best to break social barriers, और ये जो सोशल बैरियर्स थे, सामाजिक बाधाएं थी, he tried his best just to break all of them। उन्होंने बहुत कोशिश की है जितनी भी सामाजिक बाधा है, ये ऊंच नीच जात पात है, सबको ख़त्म कर दिया जाए। That from people varying background could mingle easily, जिससे कि अलग अलग बैकग्राउंड के, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग रिलीजन के लोग आपस में आसानी से मिंगल कर सके, आसानी से मिल सके। तो इसलिए उन्होंने बहुत कोशिश की, और इसी कोशिश में उन्होंने क्या किया, ही यूज्ड टू स्पेंड आवर्स विथ मी, क्योंकि मैं मुस्लिम था। तो एग्जाम्पल सेट करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, देखिए मैं ब्राह्मण होकर मुस्लिम से बात करता हूँ, आप सब करिए, कहते हैं दैट्स व्हाई ही यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विथ मी। क्या करते थे? मेरे साथ बहुत टाइम स्पेंड करते थे। एंड वुड से, और हमेशा मुझसे क्या कहते थे? कलाम। I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big city. I wanted to educate you in such a way, मैं तुम्हें इस प्रकार से एजुकेशन देना चाहता हूँ, इतना पढ़ाना चाहता हूँ कि आप इन बड़े शहरों के ये जो जाति पात ऊंच नीच इन सब के आप परे हो जाएं, इन सब के आप ऊपर हो जाएं। जैसे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, ये किसी जाति पात में बंधे, ये सारी जाति सबसे अलग हो जाते हैं। तो उन्होंने यही कहा था कि कलाम मैं तुम्हें इस प्रकार से एजुकेट करना चाहता हूँ कि आप इन सारी चीज़ों से परे हो जाएं, इन सब से बियॉन्ड रहे। और इसीलिए क्या किया, वन डे ही इनवाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील। सो वन डे ही इनवाइटेड मी एट हिज होम, और किस लिए इन्वाइट किया? फॉर अ मील, खाने के लिए। टीचर ने क्या किया, एक दिन मुझे अपने घर खाने पे बुलाया। His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in a ritually pure kitchen. और उनकी वाइफ, हाँ मुस्लिम को खिलाओगे? His wife was horrified by the idea. उनकी वाइफ एकदम से डर गई कि हमारी शुद्ध शाकाहारी पवित्र किचन में एक मुस्लिम खाना खाएगा, ये सोच के डर गई वो।
एंड शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन। उसने कहा मैं अपने किचन में इस लड़के को खाना नहीं परोसूंगी, ये मेरे किचन में खाना नहीं खाएगा। शिव सुब्रमण्य अय्यर वॉज नॉट perturbed nor did he get angry with his wife. So neither he was perturbed means nor he was disturbed. ना तो वो डिस्टर्ब हुए, परेशान हुए, और ना ये आप खिलाओगे कैसे नहीं देखते तुम्हें। ये भी नहीं, he didn't say anything, कुछ भी नहीं कहा। ना तो उन्होंने अपनी वाइफ से नाराज हुए, ना अपनी वाइफ को डांटा, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बल्कि क्या बट इंस्टीड सर्व मी विथ हिज ओन हैंड। ठीक है भाई, आप सर्व मत करिए, मैं कर देता हूँ सर। एंड सेट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील। और केवल मुझे अपने हाथों से खाना ही नहीं परोसा, बट ही ऑल्सो सेट बिसाइड मी, मेरे बगल में खुद बैठकर उन्होंने खाना खाया। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर व्हाइल आई वॉज टेकिंग माई मील। जब मैं अपना खाना खा रहा था ना, हिज वाइफ वॉज लुकिंग एट मी फ्रॉम द किचन डोर। दरवाजे के पीछे छिप के हम लोगों को देख रही थी मैं कैसे खाना खा रहा हूँ। कहते आई वॉन्डर्ड वेदर सी हैड ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस। तो आई वॉन्डर्ड, मैं सोच रहा था क्या कोई डिफरेंस दिख रहा है कि हिंदू है वो ऐसे खाते हैं, हम लोग ऐसे खाते हैं। अरे कोई डिफरेंस तो नहीं समझ में आ रहा होगा, क्या कोई डिफरेंस दिख रहा है या पानी पीने में कोई डिफरेंस दिख रहा है। सर ये अब्दुल कलाम सोच रहे थे। हाँ, अब्दुल कलाम जब वो खाना खिलाए, बोले इन्होंने मुझे खाना नहीं खिलाया क्योंकि इन्हें लग रहा है उसलिए मैं, तो क्या हमारे खाने के तरीके में कोई डिफरेंस है। क्या पानी पीने के तरीके में डिफरेंस है। और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील, क्योंकि साउथ इंडिया में खाना किस पे खाया जाता है, पत्ते पर, है ना, बनाना लीफ। या तो खाना खाने के बाद मैंने फर्श साफ़ किया, तो क्या फर्श साफ़ करने के तरीके में कोई डिफरेंस था, कुछ भी नहीं था। जैसे उन्होंने खाना खाया मैंने खाया, जैसे उन्होंने पानी पिया मैंने पिया, जैसे उन्होंने फर्श साफ़ किया मैंने किया। When I was leaving his house, Shiv Subramanya Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. When I was leaving his house, और जब मैं जा रहा था ना, तो क्या हो रहा था, शिव सुब्रमण्य अगले हफ्ते फिर आना खाने पर। तो कहता मैं परेशान था, जैसे नहीं आप अपने दोस्त के घर जाओ और दोस्त की मम्मी क्या हमारे बच्चे को बर्बाद करके रख दिया, आज को घर बताया। अब देखो अरे मम्मी आप अंदर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं बैठ के, है ना, तो कोल्ड ड्रिंक गले के नीचे जाती है। जैसे एक मूवी देखी होगी आप लोगों ने, 3 इडियट्स देखी है, वो घर में खाना खिला रहे होते हैं, या तो उनके ही जैसे बेशरम हो, कंसंट्रेट ऑन पनीर कहते रहो, तो अलग बात है ना। तो यहाँ पे यही था, बोले क्या किया, ही इनवाइटेड मी फॉर डिनर नेक्स्ट, बोले अगले हफ्ते फिर आना। मैंने कहा क्या कह रहे हैं, अभी एक बार ही वाइफ कह रही थी नहीं खिलाऊंगा, भगाओ, ये दोबारा ही बुला रहे हैं। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, वो समझ गए मैं हेजिटेट कर रहा हूँ। सो ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट, उन्होंने कहा अपसेट मत होइए कलाम। सेइंग वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम्स हैज टू बी कन्फ्रंटेड, एंड ही सेड मी दैट वंस यू डिसाइडेड टू चेंज द सिस्टम, कि जब आप एक बार सिस्टम को चेंज करने का डिसीजन लेते हैं ना, देन यू हैव टू कन्फ्रंट, यू हैव टू फेस सच टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। ऐसी प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ेगी, अगर आप इनसे डर के पीछे हट जाएंगे तो आप सिस्टम को चेंज नहीं कर पाएंगे। उन्होंने उससे कहा कि अगर मैं सिस्टम को चेंज करना चाहता हूँ तो मुझे ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। When I visited his house the next week, Shiv Subramanya Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. You can get that. When next time I came to his house, his wife was completely changed. बिल्कुल बदल गई थी। She herself took me in her kitchen. वो खुद मुझे अपने किचन में ले गई और उन्होंने खुद अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया। Then the second world war was over, और तभी क्या हुआ, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो ओवर खत्म हो गया। एंड इंडियाज फ्रीडम वॉज एमिनेंट, एमिनेंट मतलब अबाउट टू बी डिक्लेयर, अब इंडिया की फ्रीडम मिलने वाली थी। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया डिक्लेयर्ड गांधी जी, और गांधी ने क्या डिक्लेयर किया था कि अब इंडियंस अपना खुद का इंडिया बनाएंगे, क्योंकि अब इंडियंस का रूल होगा यहाँ पर। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विथ एन अनप्रेसिडेंट ऑप्टिमिज्म, जो पूरा का पूरा देश था किससे भरा हुआ था, एक नई आशा से, एक नए उत्साह से, एक नए उमंग से भरा हुआ था। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन रामनाथपुरम। सो आई रिक्वेस्ट माई फादर, मैंने अपने फादर से कहा
क्या मेरी प्राइमरी एजुकेशन पूरी हो गई है, सो नाउ आई वांट टू लीव रामेश्वरम, मैं रामेश्वरम छोड़ के कहाँ जाना चाहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रामनाथपुरम में जाकर मैं वहाँ पढ़ाई करना चाहता हूँ। ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड, और फिर उन्होंने ऐसे जैसे बहुत सोच रहे हों, सोचते हुए उन्होंने मुझसे क्या कहा, अबुल आई नो यू हैव टू गो अवे एंड ग्रो, अब्दुल मैं जानता हूँ कि तुम्हें क्या करना होगा, यू हैव टू गो अवे एंड ग्रो, बड़ा होने के लिए, समझ, आपको अच्छा बनने के लिए, बड़ा बनने के लिए आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट, ही कोटेड खलील गिब्रन टू माई हेजिटेंट मदर, क्योंकि जब बच्चा बाहर जाता है ना सबसे ज़्यादा परेशान मम्मी रहती है। अभी भी आप स्कूल आते होंगे तो बड़ी टेंशन में रहती होंगी, मास्क नहीं उतारना, ये कर देना, वो कर देना, है ना, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देती होंगी। कभी कभी बुरा भी लगता है ना जब मम्मी ज़्यादा केयर करती है, अरे मम्मी बड़े हो गए हैं, हाँ यही तो लगता है, बट ये उनका लव होता है, अफेक्शन होता है। तो उनकी माँ परेशान हो गई, उनकी माँ हेजिटेट कर रही थी कि बाहर जाके कैसे रहेगा। तब उन्होंने कहा कि क्या डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस, सीगल जानते हैं इसको बोलते हैं, समुद्र में रहने वाला एक छोटा सा पक्षी होता है, बहुत ऊपर तक उड़ता है। वो कहता है कि वो जो सीगल होता है ऊंची उड़ान इसलिए कर पाता है क्योंकि वो अकेला एक दिन वहाँ से उड़ना शुरू करता है। जब उड़ना शुरू करता, धीरे धीरे उड़ते उड़ते वो इतनी ऊंचाई पर पहुँच जाता है। तो इसे भी अगर ऊंचाई छूनी है, अगर सक्सेसफुल बनना है, तो इसे भी अपना घर छोड़कर जाना पड़ेगा। और एक खलील गिब्रन की लाइन थी, उसको कोट करके उन्होंने बताया, उन्होंने कहा योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, उन्हें तुम्हारे बच्चे केवल तुम्हारे बच्चे थोड़ा ना है, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। वो किसके सन्स एंड डॉटर्स, मीन्स अपनी इच्छाओं के, भाई उनकी भी तो कुछ इच्छा है। अब बच्चे आपके हैं, आपने उन्हें जन्म दिया तो सब कुछ आपके हिसाब से थोड़ा ना करेंगे, उनकी भी इच्छाएं हैं, उन हिसाब से कुछ करेंगे। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, दे कम थ्रू यू मीन्स यू आर द मीडियम ऑफ देम फॉर कमिंग हियर, आपके माध्यम से वो यहाँ आए हैं, बट नॉट कम फ्रॉम यू, लेकिन आपके लिए थोड़ा ना आए, वो भी अपने लिए कुछ करेंगे। यू मे गिव देम योर लव, आप उन्हें अपना प्यार दे सकते हैं, बट नॉट योर थॉट्स, अपने विचार नहीं दे सकते हैं। विचार तो उन्हें खुद डेवलप करने पड़ेंगे, और विचार कब डेवलप होंगे, जब अच्छी जगह जाएंगे, बाहर जाएंगे, पढ़ेंगे। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि ये बच्चे हैं, इनके खुद के आइडियाज़ होंगे, खुद के थॉट्स होंगे, और खुद के आइडियाज़ और खुद के थॉट्स डेवलप करने के लिए इसे हमें क्या करना होगा, इसे हमें बाहर जाने देना होगा। सो इन दिस वे दिस चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड, है ना। तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा सबको। तो काफ़ी क्वेश्चंस हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिए थे, सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए थे बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन बचे थे। जैसे सेकंड में आ जाओ, पहले थर्ड सेकंड लिखा हुआ, नीचे देखेंगे लिखा हुआ व्हाई डिड अब्दुल कलाम वांट टू लीव रामेश्वरम, मिल गया क्वेश्चन बेटा सबको। तो है व्हाई डिड अब्दुल कलाम वांट टू लीव रामेश्वरम, क्यों छोड़ना चाह रहे थे रामेश्वरम। हाँ, ही वांटेड टू गो टू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ रामनाथपुरम फॉर गेटिंग एजुकेशन लेने के लिए वहाँ जाना चाह रहे थे। तो ये यहाँ पे लिखेंगे। समृद्ध निरंजन, हाँ दूसरा मोबाइल भी अभी देख लो, है ना। फिर दूसरा क्वेश्चन था व्हाट डिड हिज फादर से टू दिस, जब उन्होंने अपने फादर से कहा मुझे कहाँ जाना है, रामनाथपुरम जाना, सो व्हाट डिड ही से टू दिस, उन्होंने क्या कहा था, अबुल आई नो दैट यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, आपको यहाँ से जाना होगा। डज द सीगल नॉट फ्लाई अलोन, तो ये यहाँ पे लिख देंगे। हाँ, व्हाट डू यू थिंक हिज वर्ड्स मीन, व्हाट डू यू थिंक ही स्पोक दी, आपको क्या लगता है उनके वर्ड्स का मतलब क्या था। That is words mean that if you have to grow up, then you have to leave the small places and you have to go out for getting education and all the things। तो ये सारी चीज़ें किस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लीजिएगा। अब इसमें लॉन्ग में देखिए, जैसे है क्वेश्चन, डिस्कस दीज क्वेश्चंस विद योर टीचर एंड देन राइट डाउन योर आंसर इन 2 or 3 पैराग्राफ्स, है ना, ये वाला है। जैसे पहले ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी और रामेश्वरम वॉज वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ द सेग्रेगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप सेज द ऑथर। तो पहला है जैसे विच सोशल ग्रुप्स डज ही मेंशन, वर दीज ग्रुप्स इजिली आइडेंटिफाइड, फॉर एग्जाम्पल व्हाई द वे दे ड्रेस्ड। तो कौन से सोशल ग्रुप्स की बात कर रहा है, ये स्टॉक। तो क्या ये कपड़ों से पहचाने जाते हैं,
यस हाँ यस मुस्लिम किससे पहचाना जाता है एंड हिंदू फ्रॉम द सेक्रेड थ्रेड, वो यहाँ पे लिख देंगे। यस वर दे अवेयर ओनली ऑफ देयर डिफरेंसेस और डिड दे ऑल्सो नेचुरली शेयर फ्रेंडशिप एंड एक्सपीरियंसेस। Think of the bedtime stories in Kalam's house of who his friends were and of what used to take place in the pond near his house. Were they aware only of their differences or did they also naturally share friendship? क्या वो सोशल डिफरेंसेस को मानते थे या नेचुरली फ्रेंडशिप को शेयर करते थे? नेचुरली फ्रेंडशिप को शेयर करते थे। हाँ, क्योंकि देखिए जब मंदिर वो सीताराम कल्याणम सेरेमनी होती थी, इनकी फैमिली क्या देती थी? वोट देती थी। इनके जो फ्रेंड थे वो तीनों के तीनों ब्राह्मण थे, तो वो यहाँ पे करेंगे। फिर द ऑथर स्पीक्स बोथ ऑफ पीपल हु वर वेरी अवेयर ऑफ द डिफरेंसेस अमंग देम एंड दोज हु ट्राई टू ब्रिज दीज डिफरेंसेस। कैन यू आइडेंटिफाई सच पीपल इन द टेक्स्ट? तो ऐसे लोग जो डिफरेंस करते हैं और ऐसे जो लोगों को मिक्स करते हैं, क्या आपको ऐसे लोग इस स्टोरी में दिखे? जो अलग करते हैं वो लोग कौन था? टीचर। और जो मिक्स करते हैं वो भी टीचर, शिव सुब्रमण्य अय्यर, तो वो लिख देंगे। narrate two incidents that show differences can be created and also how they can be resolved। आप दो इंसिडेंट बताइए जिससे ये पता चलता है कि डिफरेंस क्रिएट किए जा सकते हैं लेकिन उनको रिजॉल्व भी किया जा सकता है। तो एक इंसिडेंट दोनों टीचर वाली है। पहली वो जिसने अलग बिठा दिया था, उसके बाद जब डांटा तो उन्हें भूल गए। दूसरा रामानंद शिव सुब्रमण्य अय्यर वाइफ वाला कि उन्होंने किया, और सेकंड टाइम में क्या किया? सीसा। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लीजिएगा, ओके। और नोट कंप्लीट करो बेटा, मंडे से मैं अब चेक करना शुरू करूँगा, है ना? ओके हाँ बेटा पूछिए।